Good morning, dear students. Welcome to the online coaching. Myself, Chirag Joshi. Dear students, today we are going to discuss a very interesting topic in interesting subject. I know your favorite subject, science. Dear students, first chapter, that is matter in our surrounding. बच्चों, आप कोई भी चैप्टर स्टार्ट करो उससे पहले उसका नेम जो है उसका एनालिसिस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम आज वही करने वाले हैं। व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, सी स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर द कंसेप्ट व्हाट इज मैटर। आपको ये पता होना चाहिए कि मैटर क्या है। डियर स्टूडेंट्स, लेट अस सी व्हाट इज मैटर. What is matter? This question arises in our mind. Then anything that occupies space and has mass is called matter. Anything, कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और उसका खुद का मास है इज कॉल्ड मैटर. अभी आप सोच रहे हैं कि सर ने तो डेफिनेशन बता दिया कि भाई एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड विच हैज़ मास इज नॉन एज मैटर. अभी इसमें कौन से एग्जाम्पल्स ले? डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं सभी टाइप्स के एग्जाम्पल्स अभी बताता हूँ. देखिए डियर स्टूडेंट्स, दिस चॉक occupies the space, it has the mass, then this chalk is known as matter. A simple thing, chalk is known as matter. Let's take some different example. Ice cube occupy the space. आप ट्रे में रखोगे वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है. उसको खुद का मास भी है, yes, that is known as matter. Then you are thinking, sir, then each and everything is matter. You are correct, each and everything is matter. Whole universe is made up of matter. You are smart and intelligent students, you are knowing that what is matter. You can give me so many examples related to the matter, but I want to still give some examples to make it more clear. Now a question arises in my mind. Yes, air is the matter. Air is the matter. Air occupy the space. Yes, air occupy the space. Air has its mass, so it is known as matter. Some students are thinking, सर ने तो बता दिया कि एयर मैटर है, हम ऑनलाइन पूछ भी नहीं सकते कि सर ये मैटर है कि नहीं है. डियर स्टूडेंट्स, आपने बलून्स तो देखे ही है. बलून्स पहले इतनी छोटी साइज़ के रहते, जब आप उसके अंदर हवा भरते हो तो बलून धीरे 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 बड़ा होता है. बलून तो पहले था छोटा, तो अब ये बड़ा कैसे हो गया? इसके अंदर क्या आया? एयर. विच थिंग हैज़ फिल्ड इनसाइड द बलून? एयर. And air has started occupying the space. So air occupies the space. Air has the mass. So air is known as the matter. Simple. Okay. Now, if I ask the second, if I give you the third example of matter, water. Water is a matter, because water occupies the space. Yes or no? Water has the mass, so water is a matter. You are knowing that in the earth, in the world, 2/3 part is of water. Yes or no? So water is also a matter. Dear students, now you are clear what is matter. Each and every examples of solid, liquid and gas comes under the title metal.
सो सभी सॉलिड चीजें, लिक्विड चीजें और गैसियस स्टेट वाली चीजें सभी क्या है, मैटर है, मैटर। ठीक है। हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ मैटर्स आर देयर? As I ask the question, numbers of students are giving the answer 3 states. Dear students, 5 states are there. How many states? 5. Solid, liquid, gas. 4th one is plasma. 5th one, that is Bose-Einstein states. Okay, so solid state, liquid state, gaseous state, plasma and Bose-Einstein state. Clear? So these are the 5 states. So dear students, I hope you are able to understand what is matter, और मैटर के बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने आपको दिए, तो आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। नाउ व्हाट इज मैटर? उसका सिंपल आंसर है एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। नाउ अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि मैटर किस चीज से बना है? समझ तो गए कि मैटर क्या है, तो मैंने आपको समझाया कि कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और मास है उसको मैटर कहते हैं। लेकिन आप सोच रहे हैं कि सर मैटर बना किससे है? तो पहले हम ये सोच रहे थे कि मैटर जो है कोई एक ही फॉर्म है, एक ही चीज से बना हुआ है। लेकिन आफ्टर द नंबर्स ऑफ एक्सपेरिमेंट वी केम टू नो दैट मैटर कैन बी मेड अप ऑफ स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स, numbers of millions of small particles. So matter is made of small millions particles. And dear student, the small particle, further you will come to know that small particle is known as atom. The small particle. Okay, the answer is here. The matter is made up of what? Answer is it is made up of small particles, and that small particles is known as atom. That small particles is known as atom. Okay. अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि सर ऐसे तो कौन से एक्सपेरिमेंट किए जो हमें ये पता चल गया कि एटम जो मैटर जो है वो स्मॉल पार्टिकल्स से बना हुआ है, और वो स्मॉल पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं? एटम। ये स्टूडेंट्स, यू आर थिंकिंग दैट हाउ दिस मैटर इज मेड, of what this matter is made, and you are saying that sir how can we come to know that small particles are there of matter? हमें कैसे पता चलेगा कि मैटर के बहुत सारे पार्टिकल्स है? तो मैं उसका आपको एग्जांपल देता हूँ जो आपकी टेक्स्ट बुक में एक्टिविटी के फॉर्म में है। वो एक्टिविटी कुछ इस तरह की है कि आपको बीकर लेना है, बीकर के अंदर 100 ml ऑफ वाटर लेना है, उसके अंदर पोटेशियम परमैंगनेट डालना है। डियर स्टूडेंट्स, एज यू ऐड पोटेशियम परमैंगनेट द 100 ml ऑफ वाटर विल टर्न इनटू डार्क पिंक कलर। वो डार्क पिंक कलर का सॉल्यूशन बन जाएगा, पूरा सॉल्यूशन। ठीक है। अभी आपको क्या करना है, एक दूसरा बीकर लेना है, उसके अंदर 90 ml वाटर फिल करना है, डिस्टिल वाटर। नाउ यू हैव टू टेक सॉल्यूशन 10 ml सॉल्यूशन। किसका लेंगे आप? जो हमने ऑलरेडी बनाया है। किस तरीके से बनाया था? वाटर, उसमें क्या डाला था? पोटेशियम परमैंगनेट। उसका पूरा सॉल्यूशन में से हम 10 ml निकाल लेंगे। 10 ml हम कहाँ डालेंगे? दूसरे बीकर में। दूसरे बीकर का भी कलर आ रहा है पिंक, पहले वाले का था डार्क पिंक, अभी इसका भी आ रहा है पिंक लेकिन उससे थोड़ा लाइट है। हम उसको भी हिलाएंगे, मिक्स करेंगे। अभी क्या करेंगे, हम तीसरा बीकर लेंगे। तीसरे बीकर में भी हम 90 ml ऑफ वाटर फिल करेंगे और दूसरे वाले बीकर में से हम 10 ml निकाल लेंगे और कहाँ डालेंगे? तीसरे वाले में। सो पहला बीकर जो था वो डार्क पिंक था, दूसरा जो था वो उससे थोड़ा कम लाइट पिंक था, और तीसरा वाला उससे भी थोड़ा लाइट है पिंक में, और फोर्थ वन भी उससे थोड़ा कम लाइट है, पिंक कलर है। ठीक है।
तो ये चारों के कलर पिंक ही है, लेकिन डिफरेंस है शेड में, डार्क लाइट, लाइट एंड लाइट। ठीक है, तो आपको ये समझ में क्या आया, इससे शेड से क्या समझे आप? आपको ये समझना है कि पार्टिकल्स जो है वो इतने मिल गए हैं और इतने सारे हैं कि जहाँ पे वो जाते वहीं पे उसका कलर आता है, पिंक कलर का आता है। यहाँ से थोड़ा लिया, दूसरे में डाला, दूसरे में से लिया, तीसरे में से चौथे में, वहाँ तक उसका कलर आता है। आप सोच सकते हो कि वो छोटे छोटे कितने सारे पार्टिकल्स हो गए जो सब जगह पे अपना अपना कलर बना रहे हैं। सो फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी कैन कम टू नो दैट मिलियंस ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स आर देयर। I hope I'm trying to explain you this activity. I hope you are able to understand this thing. Now we are moving towards the characteristics of matter. तो आपको आज मैं ये बताऊंगा कि characteristics of matter जो है वो क्या है, मैटर की characteristics क्या है। Dear students, now let us see the particles of matters are continuously moving. जो मैटर के पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूसली क्या कर रहे होंगे, मूवमेंट कर रहे होंगे, कंटिन्यूसली मूव कर रहे। अभी आपको तो पता है कि एयर क्या है, पार्टिकल। बाद में मैं उसको डिवाइड करूंगा गैसियस स्टेट में। पहले तो आपको यही समझना है कि पार्टिकल क्या है, सॉरी एयर क्या है, तो मैटर है। अभी आपको ये भी पता है कि अगर आप एक इंसेंस स्टिक कोई भी घर के कोने में रख दोगे, उसको एनलाइटन नहीं करना है, उसको जलाना नहीं है, ऐसे ही रख देना, तो उसका स्मेल आएगा? नहीं आएगा। अगर आप उस इंसेंस स्टिक जो जहाँ पे रखी है उस जगह पे जाएंगे और नज़दीक से उसकी स्मेल लेंगे तो उसकी स्मेल आ सकती है, ठीक है। लेकिन आप बहुत दूर है और उसकी स्मेल आने वाली नहीं है। जैसे ही आप उसको लाइटन कीजिए, उसको जलाइए, आप जहाँ पे भी है वहाँ पे उसकी स्मेल क्या होगी, स्प्रेड। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, कि उसके पार्टिकल्स जो है वो क्या करते रहते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं, ठीक है। ओके, नाउ द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक, the second characteristics are these particles have space between them. These particles have what? Space between them. You are knowing that matter, solid, liquid and gas, वो तो हम पढ़ चुके हैं। सॉलिड जो है उसके बीच में स्पेस कैसी रहती है, बहुत कम। लिक्विड के बीच में स्पेस कितनी रहती है, सॉलिड से थोड़ी ज़्यादा। गैसियस में तो स्पेस ही स्पेस है, लिक्विड से और सॉलिड से भी बहुत ज़्यादा स्पेस किस में रहती है, गैसियस में रहती है। सो दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। अभी आपको सॉलिड, लिक्विड और गैस सेपरेट नहीं करना है। थर्ड वन इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मैटर्स के पार्टिकल्स है, दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर। नाउ वन मोर एक्टिविटी इज गिवन. In that activity, what they are doing? They are making a chain of 4-5 students. They are holding each other with arm locks. Their arms are locks. One arms are going on the back side of the second person. They are locking themselves, tight locking. So in the second group, they are holding just their hands and they are making group of 4 person. In the third, they are just having this kind of finger lock. So dear students, 3 groups we are having. One are there holding tightly to each other. Second one is they are holding each other with their arms. And third one they are holding each other with their finger lock. Which one is easy to break? Easy किसको break करना रहेगा? बहुत सिंपल है। जो फिंगर टिप से होल्ड कर रहे हैं उनको सेपरेट करना कैसा रहेगा, बहुत ही ईजी रहेगा। और ये जो सारे पार्टिकल्स है एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। आई होप whatever I am trying to explain you are able to understand. Okay dear students, so we will discuss that which of the followings are matter. कौन कौन सी चीज़ें मैटर है आज वो हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट वन इज चेयर. चेयर is matter, yes or no? Chair occupy the space and it has the mass, so chair is a matter. Okay. Air is a matter. Air is a matter. Now the third one,
that is love. I don't think this is matter, and love doesn't matter. Yes or no? Yes. So love is not a matter. Love doesn't occupy any space. Okay, they are saying, no, I'm giving some space in your, I'm giving space to you in my heart. This is false. Blind belief. No one is giving space anywhere. Okay, so love is not a matter. Fourth thing, smell. स्मेल इज ऑल्सो नॉट अ मैटर. स्मेल मैटर नहीं है. स्मेल तो इसलिए आती है ताकि वो एयर के मॉलिक्यूल्स हमारे पास लेके आते हैं. सो एयर इज द मैटर, स्मेल मैटर नहीं है. ओके. हेट, अगर लव मैटर नहीं है तो हेट कहाँ से मैटर हो गया? ओके, सो हेट इज ऑल्सो नॉट अ मैटर. सो हेट, स्मेल, लव. Almonds, badam, yes, it is a matter. Thought, I hope you are able to understand. Thought, अभी जो विचार है वो तो मैटर है ही नहीं, लेकिन अच्छे विचार बहुत मैटर करते हैं. दैट मैटर इज डिफरेंट. ओके. कोल्ड, ठंड लगना, ये कोई मैटर नहीं है. लेमन वाटर, yes, it is a matter. Lemon water, any water, it is a matter. Okay, so lemon water is a matter. Smell of perfume, अगर खाने की खुशबू मैटर नहीं है तो स्मेल ऑफ परफ्यूम इज ऑल्सो नॉट अ मैटर, क्योंकि परफ्यूम डजेंट मैटर, फूड मैटर्स. Yes or no, dear students? Okay. So I have tried to explain you the examples of matter. I hope, dear students, you are able to understand this concept. Thanks for watching this video, dear students. Thank you so much.